Welcome. This is the sixth lecture inside PC core components. Today we are going to see the motherboard. A computer motherboard is nothing but the circuit board or circuit which controls the entire functioning of the computer. The motherboard serves as a single platform to connect all of the parts of the computer together. The motherboard basically connects all the parts of the computer together. It connects the CPU, memory, hard drives, optical drives, video card, sound card and other ports and expansion cards directly or via cables. मतलब ये जितने भी ये डिवाइस जितने भी कंपोनेंट्स इधर लिस्टेड हैं वो या तो डायरेक्टली कनेक्ट होता है मदरबोर्ड से या विद द हेल्प ऑफ केबल्स. It can be considered as the backbone of the computer. Backbone means जो ह्यूमन बीइंग की बैकबोन होती है वैसे ही कंप्यूटर की बैकबोन क्या है? मदरबोर्ड. Motherboard is mounted inside the case and is securely attached via small screws through pre-drilled holes. मदरबोर्ड डायरेक्टली चेसिस या फिर कहते हैं कंप्यूटर केस के अंदर माउंट करते हैं और उसको स्क्रूज से टाइट रखते हैं, स्क्रूज से कनेक्ट करते हैं और उसको टाइट रखते हैं जिससे कि वो बाहर गिर ना सके या फिर ढीला ना रहे. और ऑलरेडी उसमें प्री ड्रिल्ड होल्स होते हैं सो दैट यू कैन कनेक्ट योर motherboard to the case. You can see this is the typical motherboard. In every side you are seeing this 1 2 3 4. What are these? These are nothing but references that I have mentioned at the last last slide, which is showing reference कि कहाँ से कौन सा स्टेटमेंट है या फिर कोई फिगर ली है तो वो वहाँ मेंशन कर रखा है मैंने. तो अगर आपको देखना है तो यू जस्ट विजिट दीज वेबसाइट्स. You can see on this motherboard all ports are shown. Then these components are shown. Initially you are not able to recognize what these actually components, what these slots are, but one by one we are going to look each and every component, and after that you will be able to recognize each and every component very clearly. So features, what are the features of motherboard? Motherboard varies greatly in supporting various types of components. Motherboard supports a single type of CPU and few types of memories. Video card, hard disk, sound cards have to be compatible with the motherboard to function properly. Motherboards, cases and power supplies must be compatible to work properly together. Means all these conditions when get satisfied, then your each and every component like cards, memory cards, everything will work together when all are compatible to the motherboard. Popular manufacturers of motherboard are Intel, Asus, Open, A-Bit, Biostar, Gigabit, MSI. Now here we are going to have a look on what are the components. So here you can see these red number of arrows. It is showing all connectors and ports. These are audio and mic jack. Here you can see Ethernet port, then PS2 port, then serial port, etc. Now here it is showing that this is AGP slot, then PCI slots, south bridge, north bridge with heatsink, hard drive slots, RAM slots, power connector,
CPU heat sinks and mounting points for fan and CPU socket. तो ये जो कंपोनेंट्स है, ये सारे कंपोनेंट्स है या फिर स्लॉट्स है या जो भी दिख रहा है, वो कहीं हर जगह कोई ना कोई कंपोनेंट ऐड होगा. जैसे कि डी रैम है तो मेमोरी स्लॉट्स है, तो हम इधर हम रैम को कनेक्ट करते हैं. पावर कनेक्टर जो SMPS है उसका पावर केबल को हम यहाँ कनेक्ट करते हैं, ताकि SMPS से क्या मिलता है, पावर मिलता है. इट इज़ कन्वर्टिंग योर electricity from the wall socket to the electricity that is required by each and every component. Then CPU socket, ये जो socket है इसको खोलेंगे तो इसके नीचे निकलेगा CPU इसके नीचे कवर्ड रहता है और वो बहुत ही प्रोटेक्टिव है इस कवर के इस केस या इस कवर के अंदर. AGP slots, ROM, साउथ ब्रिज, PCI स्लॉट्स, नॉर्थ ब्रिज एंड हीट सिंक. ये हम आगे देखेंगे, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कौन सी क्या चीज़ है. सो दिस इज मोर डिटेल्ड एंड क्लियर फिगर. यू कैन सी एवरीथिंग हियर शोन. सम एक्स्ट्रा you can see CMOS backup battery is shown, BIOS is shown, then ATX power connector is shown, then rest other things are same as it was shown in before figure. So you can see this is the figure of CPU socket. CPU socket or processor socket is used to install or insert the processor. We have two types of sockets, LIF and ZIF socket. अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो ZIF है उसके पास ये लीवर है जिसकी मदद से इसको आप पुल करोगे तो सॉकेट खुल जाएगा और देन यू आर इजीली एबल टू सी दिस प्रोसेसर. और ये जो LIF है उसमें ये इस टाइप का जो लीवर या फिर इसको कहते हैं हिंज वो अवेलेबल नहीं है. LIF में है तो LIF जो सॉकेट है वो ये बताता है कि उसमें लो इंसर्शन फोर्स है, यानी जब हम CPU को इधर इस सॉकेट के नीचे जब हम इसको इंसर्ट करेंगे तो जो फोर्स लगाते हैं वो बहुत कम लगेगा. और जो ZIF है उसमें ज़ीरो फोर्स लगेगा, क्योंकि ये जो हिंज है उसको हम पुल कर खुल जाएगा और फाइनली यू आर एबल टू insert that CPU. Now coming to north and south bridge. What is north bridge? North bridge is always near the processor socket, which is one of the important components of the motherboard. ये किसके नियर में होता है, तो ये होता है जो CPU socket है उसके नियर में होता है. It is a focal point of motherboard and it is also called as memory controller hub. यानी ये जो नॉर्थ ब्रिज है वो क्या है, मेमोरी कंट्रोलर हब है. जो मेमोरी आगे आप पढ़ोगे कि मेमोरी को कैसे, कौन सी मेमोरी कब यूज़ करनी है वो कंट्रोल कौन करता है, तो नॉर्थ ब्रिज इंटरकनेक्ट्स प्रोसेसर सॉकेट, रैम स्लॉट्स एंड AGP स्लॉट्स. हियर गीगाबाइट चिप is not bridge, it is near processor socket. मतलब ये जो नॉर्थ ब्रिज है वो किसके नज़दीक रहेगा, मैंने ऑलरेडी बताया है कि वो CPU सॉकेट के नज़दीक रहता है और किसको कंट्रोल करता है, मेमोरीज को. तो वो कौन से पोर्ट्स को कनेक्ट कर रहा है या फिर स्लॉट्स को कनेक्ट कर रहा है, प्रोसेसर सॉकेट को, रैम स्लॉट्स को और AGP स्लॉट्स को कनेक्ट करता है, so that it can easily manage the memory. Then coming to south bridge. South bridge and north bridge are two main poles of the motherboard. South bridge interconnects primary and secondary IDE interface, SATA connectors, floppy drive, PCI slots and BIOS. South bridge किसको कनेक्ट कर रहा है, तो साउथ ब्रिज प्राइमरी सेकेंडरी IDE इंटरफेसेस को
साटा कनेक्टर्स को और फ्लॉपी ड्राइव कनेक्टर्स और पीसीआई स्लॉट्स को। ये जितने भी स्लॉट्स मेंशन कर रहे हैं हम वो कहीं ना कहीं मेमोरी को ही कनेक्ट करते हैं। वैसे ये सारे स्लॉट्स हैं। जैसे कि साटा जो है वो हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए वो कनेक्टर स्लॉट बनाया है या फिर कनेक्टर है। और आईडीई इंटरफेस जो है वो पुराने टाइप की जो हार्ड डिस्क थी वो वाला कनेक्टर है। ऑल आईडीई इंटरफेसेस आर नाउ डेज रिप्लेस्ड बाय साटा। फ्लॉपी ड्राइव कनेक्टर, that is also memory, PCI slots and BIOS. All these are small memory units that are managed by Southbridge. Northbridge किसको मैनेज करेगा? तो RAM slots, AGP slots and processor socket. While Southbridge will manage IDE interfaces, SATA connectors, floppy drive connector, PCI slots and BIOS. Now coming to RAM slots. RAM slots are used to insert RAM. मैंने आगे भी बताया था, ये जो स्लॉट दिखा रहे हैं ये आप देख सकते हैं। और उसको कैसे हम इंसर्ट करते हैं, ऐसे वर्टिकल रखते हैं so that you can properly insert your RAM card. You can see these are the RAM slots. Here it is shown 1 2 3 4. So basically you can insert 4 RAM cards. अब आप देख रहे हैं कि इसको कैसे हम इंस्टॉल करते हैं। तो इसको हम वर्टिकल खड़ा रखते हैं और फिर इधर इसको प्रेस करेंगे तो पिन अपने आप उसको पिन जैसे हम प्रेस करेंगे वैसे ही पिन, जो ये वाइट कलर की पिन दिख रही है वो रैम कार्ड को टाइट कर देगी ताकि वो हिल ना सके और वो प्रॉपर फंक्शनिंग करे। RAM slots are used to insert RAMs. There are so many types of RAM slots. They are SD RAM slots, DDR RAM slots, DDR2 and DDR3 RAM slots. SD stands for synchronize dynamic. DDR stands for double data rate. So I hope you all are clear. अब आपका एक काम है कि DDR और SD ये दोनों टाइप के जो रैम स्लॉट्स है उसका डिफरेंस आप खुद फाइंड करें। What is AGP slots? AGP slots are used to insert or install AGP cards. What is AGP? AGP is accelerated graphics port. This slot is for graphics and 3D gaming purpose. It is always besides the PCI slots. यानी PCI slot के पीछे एक slot आता है, इसको हम बोलेंगे AGP slot. आप इधर देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 PCI slot है और ये है AGP slot. AGP slot ये इस तरह का है, यहाँ पे ब्राउन कलर का दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी ब्राउन कलर का और इधर है पर्पल कलर का। बट हमेशा ये चीज़ याद रखो कि जो 3 एक जैसे PCI एक जैसे स्लॉट्स हैं उसको कहेंगे PCI स्लॉट और उसके साथ अलग से एक जो स्लॉट रहेगा वो है AGP स्लॉट। दिस इज़ फॉर ग्राफिक्स कार्ड जो अच्छी गेम खेलते हैं जिसमें हाई वीडियो क्वालिटी होती है या उसकी हाई डेफिनेशन वीडियो होती है, उसके लिए हम ये वाला स्लॉट यूज़ करते हैं ताकि हम अच्छा वाला ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल कर सकें। Now what is PCI slot? PCI are used to insert or install add-on cards such as LAN cards, sound cards, capture cards and TV tuner cards. PCI full form is peripheral component interconnect. मतलब 1 2 3 PCI slots किसके लिए यूज होते हैं? एड ऑन कार्ड्स के लिए। एड ऑन कार्ड्स कौन से होते हैं? तो लैंड कार्ड है, साउंड कार्ड है, कैप्चर कार्ड्स है और टीवी ट्यूनर कार्ड्स है। तो ये जितने भी स्लॉट्स है इधर हम ये सारे कार्ड्स हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सारे जो स्लॉट्स है इस पे इंस्टॉलेशन कैसे होगा ये भी आपको आगे पता चलेगा। सबके लिए अलग टाइप का केबल रहेगा, उसका भी अलग टाइप का कनेक्टर रहेगा। फिर उस कनेक्टर की मदद से आप यहाँ पे उसको इंस्टॉल करोगे और वो जो कनेक्टर रहेगा वो एक दूसरे या तो फिर आपका कार्ड डायरेक्ट रहेगा या तो फिर वो जो पर्टिकुलर डिवाइस होगा उसके साथ कनेक्ट होगा। मोस्टली एड ऑन कार्ड्स होते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट होंगे और देन इट विल स्टार्ट फंक्शनिंग। सो
PCI स्लॉट्स जो था वो कौन मैनेज कर रहा था? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. Which bridge was managing PCI slot is a question for you. Now coming to floppy drive connector. So you can see it is a 34 pin connector for floppy disk drive. Floppy drive connector is used to connect floppy drives. It supports two floppy drives so that A and B drives are reserved for two floppy drives. In my computer it has 32 pins. अब आप देख सकते हो कि फ्लॉपी ड्राइव है. ये जो इस टाइप का जो स्लॉट होता है उसको कहेंगे फ्लॉपी ड्राइव कनेक्टर, और ये जो है उसका पावर केबल है. जब भी आप, और ये रहेगा उसका, दिस इज अ केबल दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट योर फ्लॉपी. और ये जो इसका दिख रहा है ये कनेक्टर है, इसको हम इधर कनेक्ट करेंगे. और ये जो सॉकेट दिख रहा है और ये जो केबल है ये दिस इज नथिंग बट अ पावर केबल एंड पावर सॉकेट दैट इज गिवन टू योर फ्लॉपी ड्राइव. इससे फ्लॉपी ड्राइव को पावर मिलेगा और इससे फ्लॉपी ड्राइव कनेक्ट होगा किससे? मदरबोर्ड से. नेक्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी IDE interfaces. So primary and secondary IDE interfaces are also called as IDE connectors. Okay. IDE connectors और पाटा कनेक्टर्स, यानी जो पुराने टाइम पे जब हम यूज़ करते थे तब हम IDE कनेक्टर यूज़ करते थे. और पुराने टाइप की जो हार्ड डिस्क होती थी वो इस IDE इंटरफेस को यूज़ करती थी. अब IDE का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स. इट सपोर्ट्स IDE डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क एंड CD एंड DVD ड्राइव्स. नहीं, पुराने टाइप के जो होते थे हार्ड डिस्क या CD या DVD ड्राइव्स, वो हम ऐसे वाले पोर्ट पे कनेक्ट करते थे. दिस इज फॉर फ्लॉपी ड्राइव. दीज आर फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी IDE इंटरफेसेस. एक जो रहेगा वो मास्टर रहेगा, दूसरा रहेगा स्लेव. यानी दो हार्ड डिस्क हम कनेक्ट कर पाएंगे. फर्स्ट वाले पे कनेक्ट करेंगे तो वो मास्टर बनेगा, सेकेंड वाला होगा वो स्लेव बनेगा. मास्टर मीन्स ये ऑपरेट करेगा और ये होगा वो ऑपरेट होगा. सो जो भी कनेक्शन होगा वो इसके थ्रू ही होगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ मास्टर एंड स्लेव. नाउ यू कैन सी हाउ इट इज कनेक्टेड. यहाँ पे जो स्लॉट था उस पे हमने ये कनेक्टर को विद दिस केबल कनेक्ट किया और केबल का जो दूसरा एंड था वो हार्ड डिस्क पे कनेक्ट हुआ. और यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि एक पावर केबल है, पावर केबल है, और ये पावर सॉकेट है जो हार्ड डिस्क को पावर देगा. और ये जो केबल है ये भी केबल है, दिस इज नोन एज पाटा और यू कैन से IDE. वो क्या करेगा? मदरबोर्ड से हार्ड डिस्क को कनेक्ट करेगा और इसका डेटा ट्रांसफर जो होगा वो इस केबल की मदद से होगा. नाउ कमिंग टू SATA connectors. SATA are also called as serial ATA connectors. Full form of SATA is Serial Advanced Technology Attachment. These are connecting with serial ATA devices such as hard disk drives and CD और DVD drives. अब है तो जैसे वो पुराने जो थे वो पाटा कनेक्टर्स थे. सो दे आर बेसिकली रिप्लेस्ड बाय दीज SATA कनेक्टर्स. पाटा कनेक्टर्स की साइज बड़ी थी और SATA की देखो अब तो बहुत छोटी है. बेसिकली हार्ड डिस्क और CD और DVD ड्राइव्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, जो कि IDE कनेक्टर का काम था. नाउ कमिंग टू पावर कनेक्टर्स. अब पावर कनेक्टर्स, what is power connectors? So this power connector is ATX power connector. It has 20 और 24 pins. आप देख सकते हो ये 24 पिन का है. और मदरबोर्ड टेक्स द पावर फ्रॉम दिस कनेक्टर टू वर्क. यानी SMPS से ये जो केबल दिख रहा है और ये दो कनेक्टर्स है, तो एक कनेक्टर लगेगा SMPS में और एक कनेक्टर लगेगा मदरबोर्ड में, जिसकी मदद से
ये सारे केबल्स उसको मदरबोर्ड को पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे. So here this one is female and this one is male because number of holes are available and these pins are going to get inserted in this kind of hollow pins. So one side it will be male and another side it will be female so that it can attach properly. CMOS and BIOS. So what is CMOS? There is a battery in the motherboard which is used to power the south bridge and the BIOS to save the settings, date and time. मतलब CMOS क्या है? वो एक ऐसा बैटरी बैकअप है जो साउथ ब्रिज को पावर देगा और बायोस को भी पावर देगा ताकि वो जो करंट सेटिंग है जैसे डेट और टाइम है वो सेव कर सके. कब? जब पीसी बंद है तब. एवरी टाइम यू कैन सी के जब भी आप पीसी ऑन करते हो तो आपकी डेट और टाइम हमेशा रहती है. तो वो डेट और टाइम किसकी मदद से रहती है? तो ये सीमॉस बैटरी की मदद से रहती है. क्यों? वो बायोस को बैटरी प्रोवाइड करता है व्हेन योर पीसी इन शटडाउन मोड. नाउ सेकंड इज बायोस. This is CMOS and this is BIOS. So now what is BIOS? BIOS stands for Basic Input and Output System. This is also one of the important chip. It conducts the post power on self test. What is power on self test? It is a test that is performed when your PC is switched on from the shutdown mode. It is running one set of instructions. If all these instructions are satisfied, then your PC will run successfully. So you can see basically all these ports were available. You already know what are these ports, and it is on this side, and your motherboard is this, and it will be arranged in vertical manner so that all these ports are accessible to you, and you can see this on the top or this on the top, in whatever situation or in whatever condition this motherboard is arranged. अगर हम उसको ये पॉइंट ऊपर रखेंगे और ये पॉइंट नीचे रखेंगे तो ये PS2 पोर्ट हमें ऊपर मिलेंगे और बाकी ये सारे पोर्ट्स हमें नीचे मिलेंगे. या फिर अगर हम इस तरह से ये वाला पॉइंट ऊपर रखें और ये वाला पॉइंट नीचे रखें तो ये PS2 पोर्ट है वो हमें नीचे मिलेंगे और बाकी सारा ऊपर मिलेगा. सो बेसिकली हम इसको ऐसे अरेंज करते हैं कि वर्टिकल रहे और ये ऊपर रहे और बाकी सारे स्लॉट्स नीचे रहे. So this is a block diagram of motherboard. This we will study in next lecture. This is enough for today, and you can visit all these slides and you will get more and more information to understand what are the basic components of motherboard. Thank you.